کی رونق کا بھی منظر، کعبے کی رونق کا بھی منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، حمد خدا سے ترغ زبانیں کانوں میں رس گھولتی ہے اذانیں، کانوں میں رس گھولتی ہے اذانیں، بس ایک صدا رہی ہے برابر، بس ایک صدا رہی ہے برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور تیرے کرم کی کیا بات مولا، تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے حرم کی کیا بات مولا، تا عمر کر دے آنا مقدر، تا عمر کر دے آنا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور یاد آ گئی جب اپنی خطائیں اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں، اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں، رویا غلاف کعبہ پکڑ کر، رویا غلاف کعبہ پکڑ کر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، کعبے کی رونق کعبے کا منظر، کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خدیجہ بہت خوبصورت آپ نے حمد پیش کی، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ نازیہ ملک آپ کے ساتھ مسکراتی صبح میں، اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں ان سب کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ سے ہمیشہ جو ہے آپ نے دعائیں کرنی ہیں، اور اللہ سے جب آپ شکر ادا کرتے ہیں تو ایک آپ کو بات بتاؤں کہ ہر چیز میں انسان کو صبر آ جاتا ہے، اور جب انسان صبر کرتا ہے تو اللہ پر توکل جو ہے وہ انسان کا اور زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ تو آج ہم جو سبجیکٹ لے کر آئے ہیں وہ صبر، شکر اور اللہ پر توکل پر ہی لے کر آئے ہیں۔ اس پہ ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں میں ان کا تعارف بھی کروا دوں۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر سعدیہ معین ہیں، اسلامک اسکالر ہیں، بہت اچھی بات کرتی ہیں۔ ان سے ہم بات کریں گے اسی سبجیکٹ کے حوالے سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام نازیہ، بہت بہت شکریہ شو میں تشریف لانے کا۔ تھینک یو ویری مچ۔ آپ کی پازیٹیو پرسنالٹی جو ہے وہ ہمارے شو کو دیکھنے والے جو لوگ ہیں وہ بہت زیادہ اثر آپ کی بات کا لیتے ہیں، کیونکہ جب انسان پازیٹیو ہوتا ہے تو وہ پازیٹیو بات کرتا ہے تو لوگوں کے دلوں میں باتیں اتر جاتی ہیں۔ تو سب سے پہلے جو ہم بات کر رہے ہیں، جس طرح ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں ابھی صبر کی، تو لوگ جاننا بھی چاہتے ہیں، مطلب صبر کی بات کر رہے ہوتے ہیں، کئی لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا صبر ہے کیا ایکچولی، یہ بتائیے گا۔ دیکھیں نازیہ، بہت زبردست آپ نے ٹاپک آج کا چوز کیا ہے، صبر، شکر اور اللہ پہ توکل۔
मतलब ये कि एक पूरी जामे बात है कि सबसे पहले अगर सब्र की बात करें तो कुरान में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि ए लोगों जो ईमान लाए हो वो नमाज और सब्र से मदद दो। सुभान अल्लाह। यानी कि हम अगर किसी मुश्किल या परेशानी में होते तो हमें सबसे पहले सब्र करने का हुक्म है और नमाज से मदद लेने का हुक्म है। यानी कि अगर अल्लाह ताला जब किसी शख्स को कोई आला दर्जा अता करना चाहता है, अगर उसकी नेकियां इतनी नहीं होती जिनकी बिना पे वो दर्जा उसको अल्लाह ताला अता कर दे, तो अल्लाह ताला उसको जान माल और औलाद की परेशानियों में मुब्तला कर देता है और साथ साथ उसको सब्र भी अता करता है जिसकी बिना पर वो बंदा वो दर्जा वो मकाम हासिल कर लेता है। यानी आप देखें कि सब्र में अल्लाह ताला ने कितनी क़ुव्वत रखी है कि अगर इंसान सब्र करता है तो उसे दर्जात मिलते हैं। दर्जात मिलते हैं। यानी कि अगर अल्लाह ताला की तरफ से ही उसके ही हुक्म से कोई तकलीफ या परेशानी आती है और उस पर सब्र कर लिया जाए तो अल्लाह ताला उसको जज़ा खैर में बदल देता है, उसके दर्जात बुलंद कर देता है। तो इसलिए सबसे पहले कि हमें अगर कोई तकलीफ परेशानी हता कि कोई रंज कोई गम थकावट भी होती है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इस पे भी हमारे लिए अजर व सवाब है। बिल्कुल जी। अच्छा, हम जब अजर व सवाब की बात करते हैं तो कैसे जो है सब्र के साथ अजर व सवाब को आप जो है रिलेट करेंगी? देखिए नाजिया, जब कोई शख्स किसी तकलीफ या परेशानी में मुब्तला होता है वो सब्र करता है तो अल्लाह ताला उसके दर्जात बुलंद करता है। ठीक है, अगर जब कोई शख्स ज़िंदगी में तकलीफ़ें परेशानियों और मुसीबतों पे मुब्तला रहते हुए भी सब्र करता है, ठीक है, तो उस शख्स का जो सब्र है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब क़यामत के रोज़ उस शख्स को उसके अजर व सवाब दिए जा रहे होंगे उसकी सब्र की बिना पर कि वो ज़िंदगी में अपनी दुनिया में परेशानियों में मुसीबतों में मुब्तला रहता था और सब्र करता था, तो वो लोग जो ज़िंदगी में हमेशा खुशहाल ज़िंदगी गुजारते, खुश खुर्रम ज़िंदगी गुजारते, उन्हें कोई तकलीफ़ परेशानी मुसीबत नहीं आती, तो वो लोग वो मतलब आरजू करेंगे या अल्लाह कि ये इनको इस बिना पर ये अजर व सवाब मिल रहा है, किसी मुश्किल में भी तो हमें भी मिले, सब्र कर रहे हैं तो उसका भी अजर सवाब है कि किसी कोई मुश्किल भी आई है, क्योंकि जब इंसान सब्र करता है तो वो अल्लाह की तरफ ज्यादा रुजू हो जाता है कि उसने जो है सब्र कर लिया और उसने अल्लाह पे तवक्कल भी कर लिया। अच्छा, इस पे ये होता है कि बाज़ लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि मतलब मैं सब्र क्यों करूं, जिस तरह एक कोई आपस में लड़ाइयाँ हो जाती हैं, अल्लाह ना करे किसी की, तो वहाँ पर वो कहते हैं कि नहीं मैं तो बदला लेकर ही छोड़ना है, मैंने मतलब आपकी अगर ज़बानी कलामी भी कोई बात हो जाए तो मैंने तो बदला वहाँ पर सब्र की बात नहीं आती है। ऐसी जगहों पर फिर इंसान को क्या करना चाहिए, कैसा रवैया करना चाहिए, किस तरह से अपने आप पे काबू पाना चाहिए? देखिए नासिया, बात क्या है कि सबसे पहले तो अल्लाह ताला खुद फरमाता है कि उसे गुस्सा पी जाने वाले लोग बहुत पसंद है। कहते हैं ना सारे घूट बहुत अच्छे होते हैं लेकिन सब्र का जो घूट है और बर्दाश्त का वो हमारे अंदर जरूर होना चाहिए, इसके बिना पे हमें दर्जात मिलते हैं। देखिए नाजिया, कोई लड़ रहा है आप उसको जवाब दे सकती हैं, बहुत आसानी से आप पलट के लड़ भी सकती है, लेकिन कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना। अल्लाह ताला जब हमें ये फरमा रहा है कि हम सब्र करें, उसके साथ हर बात पे शुक्र करें और उसके साथ बर्दाश्त भी करें। असल में बर्दाश्त जब हमने कर ली, उस मामले को वहीं खत्म कर दिया और अल्लाह पे छोड़ दिया तो फिर तमाम मामला अल्लाह के सुपुर्द हो गए। बात खुद ब खुद जो है वो मामला बेहतर हो जाते हैं, निमट जाते हैं। बिल्कुल सही कहा। अच्छा, शुक्र पे बात करते हैं, शुक्र क्या है पहले तो ये बताइएगा। देखिए, अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करना, उसकी जो उसने अता किया उसकी रजा में राजी रहना, ये शुक्र है। उसकी जितनी नेमतों का हम शुक्र अदा करेंगे अपनी नेमतों को बढ़ा देता है। मैं एक शुक्र और सब्र की एक बड़ी प्यारी सी छोटा सा वाक़या सुनाऊंगी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब अल्लाह ताला से हम कलाम होते थे, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कलीमुल्लाह के खिताब उससे लक़ब से नवाजा, क्योंकि इसका मतलब है अल्लाह से हम कलाम होने वाले। जब आप एक बार कोही तूर पे तशरीफ़ ले जा रहे थे अल्लाह ताला से हम कलाम होने के लिए, तो एक शख्स रास्ते में मिला तो उसने कहा, मूसा आप कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने ये फरमाया कि मैं अल्लाह से हम कलाम होने जा रहा हूँ। तो कहा आपने अल्लाह के पास जाके ये कहिएगा कि मुझे बहुत अता किया है, इतना अता किया है कि मेरे पास रखने की जगह नहीं है, बस कर अब अपनी नेमतें रोक दे। तो वो सुन के पहले हैरान हुए, लेकिन अल्लाह ताला के पास जा रहे थे, ले गए उसके सवाल। आगे जाके एक शख्स देखा कि वो बहुत गरीब नादार है और इतना गरीब था कि उसके जिस्म पे कपड़े भी नहीं थे और अल्लाह ताला ने उसके जिस्म को एक तरह से कहना चाहिए ना मिट्टी से ढांप रखा था। उसने कहा कि मूसा अपने अल्लाह से कहना जाकर कि मुझे भी कुछ अता कर दे। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दोनों की बातें लेके चले गए। जब अल्लाह के हुजूर पेश की तो अल्लाह से पहले वाले बंदे की बात की कि अल्लाह पाक तेरा वो बंदा कहता है कि बहुत नेमतें अता की हैं तो छोड़ दे, अब बस कर दे। अल्लाह ने फरमाया कि उस बंदे से जाके कहना मूसा मेरा शुक्र अदा करना छोड़ दे, मैं अपनी नेमतें रोक दूंगा।
तू मेरा शुक्र ना कर, मैं तुझे नेमतें नहीं दूंगा। तू जितना शुक्र अदा करता है मेरी नेमतें बढ़ती जाती हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बड़े हैरान हुए अल्लाह का जवाब सुन के। जैसे रब्बुल आलमीन है, वापस जब दूसरे बंदे की बात की कि अल्लाह ताला वो बड़ा गरीब और नादार है, तो उसको भी अता कर दे। अल्लाह ने फरमाया उसको बोलना मेरा शुक्र तो अदा करके देख, तुझे ना नवाज दूं तो बोलना। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए दोबारा और दोनों को जवाब से अता किए। तो पहले शख्स ने कहा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह फरमाता है कि उसका शुक्र छोड़ दो। वो कहता है नहीं मूसा, ये कैसे हो सकता है, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करना कैसे छोड़ दूं? उसने इतनी नेमतों से नवाजा है, उसने मुझे पैदा किया है, मेरे आज़ाद सलामत रखे, मैं कैसे उसका शुक्र अदा करना छोड़ दूं? उनका जब तक तुम शुक्र करते रहोगे उसकी नेमतों में इजाफा होता रहेगा। जब दूसरे शख्स के पास गए तो उसको बताया कि अल्लाह ताला फरमाता है कुछ शुक्र करो तो अता करूंगा। तो वो कहता है कि नाउज़ुबिल्लाह मैं किस चीज का शुक्र अदा करूं, अल्लाह ने मुझे दिया क्या है। आप यकीन करें एक हवा चली जिस तन को उसने मिट्टी से छुपा रखा था वो भी उड़ गया, हाँ। यानी कि हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए हर हाल में कि उसने सबसे पहले तो नाजिया के बिन मकसद एक जर्रा नहीं पैदा किया, उसने हमें बनाया, अशरफुल उम्मत बनाया, अशरफुल मखलूकात बनाया। ये क्या काम है कि अपने नबी का उम्मती बना दिया, बहुत बड़ा करम है। इस करम पे भी शुक्र अदा करना चाहिए और साथ हमेशा एक दुआ जरूर करनी चाहिए कि ईमान की जिंदगी दी है तो ईमान की मौत भी अता करें। सुभान अल्लाह जी। तो ये सवाब के हवाले से अच्छा जी ब्रेक का टाइम आ गया, चलिए हम बात करेंगे मजीद शुक्र के हवाले से। हमने सब्र की डेफिनेशन आपको दे दी, अब शुक्र की भी देंगे, इसके हवाले से मजीद हम बात करेंगे। आप हमारे साथ ही रहें। जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं मुस्कुराती सुबह में, और आज हम बात कर रहे हैं बहुत खूबसूरत बात हो रही है सब्र पर, शुक्र पर और अल्लाह पे तवक्कुल पर। तो हमारे साथ डॉक्टर सादिया जी, ये बताइएगा कि अभी हम शुक्र पे बात कर रहे थे, शुक्र से जिस तरह आपने बताया कि नेमतों में इजाफा भी होता है, तो शुक्र के हवाले से कोई हदीस मुबारक भी आप हमें बताएं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं नाजिया के सब्र और शुक्र दोनों एक दूसरे के साथी हैं। वो किस तरह कि मोमिन का मामला भी बड़ा अजीब है, वो सब्र करता है तो भी उसके लिए अजर सवाब है, और शुक्र करता है तो अल्लाह ताला की तरफ से नेमतों में इजाफा होता है। यानी अगर उसको कोई तकलीफ पहुंची है, उसने सब्र किया तो भी उसके लिए भलाई है, और अल्लाह ताला ने किसी नेमत से नवाजा है, उस पर शुक्र किया तो भी उसके लिए भलाई है। यानी सब्र और शुक्र दोनों हालतों में इंसान के लिए भलाई है। तो हमें चाहिए कि हम जैसे भी हालात हों सब्र करें, और जो अल्लाह ताला ने अता किया है उस पर शुक्र करें। उस पर शुक्र करके तो देखें फिर क्या अता करता है, वो आपको शुक्र करने से पता चलेगा। बिल्कुल, इसमें हम जैसे आपने बताया कि नेमतों में बहुत ज़्यादा इजाफा होता है। लोग अक्सर जो है शुक्र के हवाले से जो है वो ये कि जिस तरह जो आपने वाक़या भी पेश किया कि इंसान जो कहता है कि जब मेरे पास सब है तो ही मैं कहूँ पहले मुझे दो, ये जो लालच है कि पहले दो फिर मैं दूंगा। इसी तरह ही जिस तरह हमने ये देखा है कि नेकियों में भी इंसान यही कर रहा होता है कि पहले मुझे तो मिल जाए फिर मैं आगे पैसे से मदद कर दूंगा, हालांकि उसके पास नेमतों का ख़जाना होता है, अपनी एजुकेशन के हवाले से, अपने अल्फाज के हवाले से, अपनी ताकत के हवाले से। तो वहाँ पर वो मदद करने के लिए कहता है पैसा होगा तो ही मदद करूँगा। ये एक जो चीज़ है ना, ये हमने देखने को बहुत ज़्यादा मिलती है। तो इसके हवाले से ज़रूर बताएं कि जब तक इंसान ये लालच जो है ये क्या, जब तक होगा नहीं, जब तक नहीं, मतलब गिव एंड टेक वाली बात कर रहा होता है। देखिए असल में हकीकत क्या है, लालच तो एक जो हम अल्फाज सुनते आते हैं कि लालच बुरी बला है, ठीक है, लेकिन हकीकत क्या है, अगर अल्लाह ताला ने आपको किसी भी चीज़ से, किसी भी नेमत से नवाजा है, तालीम के हवाले से, चाहे आपको सेहत के हवाले से, या आपको कोई हुनर ऐसा दिया जिसकी बिना पर आप मखलूक खुदा की मदद कर सकती हैं, तो कुछ नेकियां बगैर किसी मुआवजे के, बगैर किसी लालच के, खुदा की रज़ा के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए करके तो देखें। अल्लाह ताला खुद फरमाता है कि उसकी रज़ा और उसकी राह में अगर एक आप धर्म खर्च करोगे तो 10 आपको बढ़ के मिलेगा 10 गुना बढ़ के मिलेगा, ठीक है ना। नाज़िया बात क्या है कि हमारा दीन, हमारा मज़हब इतना खूबसूरत मज़हब है कि आप किसी को अगर तकलीफ ज़दा की मदद नहीं भी कर सकते तो उसको सिर्फ मुस्कुरा के देख लें तो भी आपको अजर सवाब मिलेगा, एक सदके का सवाब मिलेगा। भले उसकी तकलीफ आपकी मुस्कुराहट से दूर होगी या नहीं होगी, लेकिन कम अज़ कम आप एक नेकी तो कर रहे हैं, आपके दिल में है तो सही। तो जो चीज़ आपको अल्लाह ने अता की है, जितनी हो सके अपनी ज़ात से, अपनी तालीम से, अपने हुनर से मखलूक खुदा की मदद कीजिए, बाकी दिन अल्लाह का बाकी ये तो बात है। अच्छा, इसके हवाले से अब हम आगे अल्लाह पर तवक्कल के हवाले से बात करेंगे कि तवक्कल है क्या। देखिए नाज़िया, अल्लाह ताला फरमाता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस चीज़ को आगे से फरमाते हैं कि
जब कोई शख्स अल्लाह ताला पे तवक्कल कर लेता है और ऐसा तवक्कल करता है कि उसको ये यकीन होता है कि हर बात में कि मेरे लिए सिर्फ मेरा रब ही काफ़ी है, तो आप यकीन करें अल्लाह ताला उसका तवक्कल कभी टूटने नहीं देता और हमेशा उसकी मदद करता है। हकीकत क्या है कि हम मुस्लिम हैं, हमें तो अपने रब पे बिल्कुल ऐसा तवक्कल करना चाहिए जैसा उस पर करने का हक है। जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि परिंदों का तवक्कल देखें अल्लाह पे कि जब वो अपने घोंसलों से सुबह निकलते हैं तो वो खाते हुए दाना जाते हैं और जब शाम को लौटते हैं तो भी अल्लाह ताला उन्हें अता करता है कि वो सैर होकर अपने पेट, अपने शिकम, अपने घोंसलों में वापस आते हैं। हाँ। वो अशरफुल मखलूकात नहीं है, वो काम करके नहीं कमा सकते ना, तो अल्लाह ताला ने उनके निज़ाम बना रखा है, एक जरिया बना रखा है कि अल्लाह का जिम्मा उन्हें खिलाना। ये तवक्कल की हदीस फरमान है कि अल्लाह पे तवक्कल ऐसा करो कि सुबह भी मिलेगा खाने को तो शाम को भी सैर होके खाओगे। तो ये हमारी तवक्कल की आज के लिए ज़रूर करें जो हमारे वक्त हालात के हिसाब से है, लेकिन उस पर इतना यकीन रखें कि जब उसने ज़िंदा रखना है, उसने रोटी रिस्क देनी है, तो ज़रूर हर बात में मदद फरमाएगा। बिल्कुल। अच्छा, हमने ये देखा है कि लोग ना एक जो नेगेटिव एस्पेक्ट है उसको ज़्यादा सामने लेकर आ जाते हैं कि ये क्यों हो गया, ये तो हो सकता है, बुरा तो हो सकता है, और मेरी ही ज़िंदगी में क्यों हुआ। ये जो क्यों का लफ्ज़ है ये बहुत ज़्यादा ये वही क्यों शुरू वाली बात है। हाँ। क्यों हुआ? सबर। सबर करने वाला कहता ही नहीं है क्यों, बल्कि सबर करने वाला कहता है जो अल्लाह की रजा उसके हर काम में बेहतरी होगी, हिकमत है। हिकमत। आप यकीन करें, एक वाकया मैं आपको बताऊं, एक शख्स था वो जो हर बात में ये कहता था कि अल्लाह ताला के हर काम में बेहतरी और हिकमत होती है। एक दिन बाहर जा रहा होता है, जाके घड़े में गिर गया आगे जाके। हाँ। तो उसने कहा अल्लाह ताला अब घड़े में क्यों गिरा दिया, इसमें क्या बेहतरी हिकमत है। ऊपर से फायरिंग शुरू हो गई, हंगामा शुरू हो गया। वो घड़े में सेफ था नीचे। जब वो मामलात निमटे तो वो उठा तो पता चला अल्लाह ने क्यों गिराया था। तो हर काम में बेहतरी और हिकमत है और हम समझ नहीं सकते क्योंकि परवरदिगार आलम तो वो तो वादा ला शरीक ज़ात है, वो तो अपने बंदे की बेहतरी के लिए करता है। और अगर इंसान को कोई तकलीफ, रंज, गम, परेशानी, मुसीबत पहुंचती है उस पर अजर सवाब ज़रूर है, लेकिन कुछ उसके अमाल भी होते हैं और कुछ अल्लाह ताला उसे अता भी करना चाहता है। अच्छा, सबसे अहम बात यही है कि तीनों का जो सब्र, शुक्र और अल्लाह पे तवक्कुल, बड़ा रिलेशन जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है और तीनों ही जो है ये आपको अपनी ज़िंदगी में अपनाना बड़ा ज़रूरी है। बिल्कुल। जहाँ पर आपके पास अगर नहीं है और कोई मुश्किल आई हुई है तो वहाँ पर सब्र करना है, शुक्र भी उसी हालत में अदा करना है कि अगर नहीं है तो शुक्र उसी, और अल्लाह पे तवक्कुल वैसे ही फिर आ जाता है, क्योंकि आप जब सब्र अदा कर रहे हैं, जब शुक्र अदा कर रहे हैं तो नेचुरली वो अल्लाह का तवक्कुल वहाँ पर आपका और ज़्यादा जो है वो मजबूत हो जाता है। सही। अच्छा जी, ये बताइएगा कि हम जो है ज़िंदगी में जब अल्लाह पे तवक्कुल कर रहे होते हैं तो उसके लिए कितना, मतलब ये होता है ना कि इंसान की सोच और अपनी दुआ जो है उसको बड़ा, आपको जो है उसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो दुआ भी किस तरह मांगें और किस तरह से जो है ये अल्लाह पे तवक्कुल करें। देखिए नाज़िया, जब हम कोई काम करते हैं और हम एज अ मुस्लिम हर काम से पहले बिस्मिल्लाह ज़रूर पढ़नी चाहिए, ठीक है, अल्लाह पे यकीन और तवक्कुल रख के और इस यकीन के साथ कि अल्लाह ताला जो है बेहतर करने वाला है। जब हम नमाज पढ़ते हैं, नमाज अदा करते हैं तो अगले वक्त हमें नहीं पता कि हमें मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेकिन ये मैं उस हवाले से बोल रही हूँ कि हमें अगले पल का नहीं पता ज़िंदगी होगी या नहीं होगी। लेकिन अगर आप एक वक्त की नमाज अदा कर लेते हैं और आपको दूसरे वक्त की नमाज मिलती है, मीन के अल्लाह ताला ने वो कबूल करी, या हमारा यकीन है, क्योंकि जब आपको इबादत करने की सादत मिल रही है तो इसमीन के अल्लाह कबूल फरमा रहा है। देखिए हकीकत क्या है, बंदा एक कदम भी अपनी मर्जी से नहीं उठा सकता, अल्लाह की रजा ना हो तो वो इबादत भी नहीं कर सकता। उसकी वो कबूल फरमाता है, वो दुआएं सुनता है, तो ही हमें ये सादत, ये हमें हासिल होती है कि हम इबादत करते हैं। और हकीकत क्या है कि नाज़िया देखें, हमें अगर कोई तकलीफ, कोई परेशानी या मुसीबत पहुंचती है तो सब्र, शुक्र, तवक्कुल का एक इस तरीके से सिलसिला है कि एक बार हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से एक शख्स ने कहा कि मुझे आप जानवरों की बोली सिखा दीजिए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पहले तो मना फरमाया, लेकिन उसके बाद उसको कुत्ते की और मुर्गे की बोली सिखा दी। वो शख्स चला गया अपने घर। अगले दिन सुबह जब उठा नाश्ता से फारिग होके, तो वो नाश्ते का दस्तरखान जब झाड़ा गया तो मुर्गे के पास झाड़ा गया, मुर्गे ने खा लिया, कुत्ते ने आपस में बात की कि तुमने खा लिया और मुझे नहीं दिया। ये बंदा वो बातें सुन रहा था। हाँ। तो उसने कहा कि कल मालिक का घोड़ा मर जाएगा, कल मालिक जो है वो काफ़ी कुछ खिलाएगा, तुम जो है कल खा लेना।
मालिक सुन के बड़ा परेशान हुआ, फौरन जाके घोड़ा बाजार में जाके उसने बेच दिया और बड़ा खुश हुआ कि मैं नुकसान से बच गया। अगले दिन भी ऐसे ही हुआ, तो मुर्गे ने खा लिया, फिर कुत्ते रह गया खाने से। उसने कहा कल मालिक खुद मर जाएगा, इसके घर वाले बड़ी नजर न्याज करेंगे, तुम्हें बहुत खाने को मिलेगा। तो उसके बाद इससे पहले 1-2 दफ़ा और जानवरों का हुआ था वाक़या, तो उसने भी इसी तरह कहा कि अब ये मर जाएगा, उसकी गाय मरी एक दिन, उसके बाद उसकी जो घोड़े के साथ 1-2 जानवर और मरे, तो वो उसने उससे पहले जो है जाके बेच दिए। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास जब वो शख्स किया कि जिस दिन ये बात हुई कि मुर्गे ने कहा कि कल मालिक मर जाएगा, तुम खा लेना इसके नजर न्याज को, तो वो शख्स भागा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास गया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से जब तमाम बात अर्ज़ की तो उन्होंने फरमाया देखो ख़ज़र ने तुम्हारी तरफ हाथ बढ़ाया था इस हवाले से कि तुम्हें तकलीफ़ में परेशानियों में मुब्तला करना चाहा था, लेकिन तुमने अपनी जैसे कहना चाहिए अक्लमंदी दिखाई और जाकर वो बेच कर आ गए। अब चूँकि तुम्हारी मौत का वक्त करीब है, अब ये नहीं रोका जा सकता। खैर पहले रब्बुल आलमीन ने चाहा था कि तुम्हारी जान पे आई हुई माल पे टाल के थोड़ा वो रोक दे, लेकिन चूँकि तुमने अपनी अक्लमंदी दिखाई, तुमने अपने नुकसान को अपने हाथों से रोक दिया, जो है तो परवरदिगार आलम जो है वो तुम्हें जान की माल पे टाल के रोक रहा था, लेकिन तुमने अपनी अक्लमंदी करी, उस वक्त को नहीं रोक सकते। अब उन्होंने फरमाया कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता, हाँ इतनी दुआ जरूर कर दूंगा तुम्हारा ईमान पे खात्मा हो, तो खत्म हो गया बंदा। तो हकीकत ये कि जब हमें अगर कोई तकलीफ आती है ना नाजिया, तो हमें ये सोच के शुक्र करना चाहिए। बिल्कुल, जिस पे हम मजीद हम बात करेंगे, लेकिन हम चाहेंगे कि हम ब्रेक पे जाने से पहले खदीजा से हम नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाएं। मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते, उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते। ये हवाले मुझे रुसवा नहीं होने देते, ये हवाले मुझे रुसवा नहीं होने देते। और मेरे घर ऐब की करते हैं वो पर्दा पोशी, मेरे घर ऐब की करते हैं वो पर्दा पोशी, कि मेरे जुर्मों को तमाशा नहीं होने देते, मेरे जुर्मों को तमाशा नहीं होने देते। और बात करता हूँ तो आती है महक तैबा की, बात करता हूँ तो आती है महक तैबा की, कि मेरे लहजे को वो महला नहीं होने देते, मेरे लहजे को वो महला नहीं होने देते। और है ये ईमान के आएंगे लहद में मेरी, है ये ईमान के आएंगे लहद में मेरी, के अपने मंगतों को वो तन्हा नहीं होने देते, अपने मंगतों को वो तन्हा नहीं होने देते। उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते, ये हवाले मुझे रुसवा नहीं होने देते।
जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं मुस्कुराती सुबह में, और हमारे साथ डॉक्टर सादिया हैं। बहुत अच्छा हमें जो है वो बता रही हैं आज सब्र, शुक्र और अल्लाह पर तवक्कुल के हवाले से। अच्छा, हम जब ये देख रहे होते हैं कि दुआ मांगने का, जिस तरह मैंने आपसे पूछा कि तरीका क्या होना चाहिए, किस तरह से दुआ मांगते हैं, दूसरा ये भी कि अल्लाह पर तवक्कुल तो इंसान हर जगह पर कर सकता है, मतलब उसके लिए स्पेशली कोई एक तो दुआ का एहतमाम होता है, वो बहुत अच्छा होता है। मैंने देखा है कि बड़ी दुआएं कबूल भी होती हैं उससे। एक होता है कि आप हर वक्त जो है वो अल्लाह से ही मांगे, कोई छोटी से छोटी मुश्किल ना पेश आ जाए, कोई बड़ी से बड़ी जो है बात ना हो जाए, उस पर आप हर वक्त अल्लाह से ही जो है मतलब रुजू कर रहे होते हैं। ये भी तो अल्लाह पे तवक्कुल होता है ना? बिल्कुल ऐसे ही नासिया, हकीकत में ज़ाहिर सी बात है रब्बुल आलमीन ने ही दुआएं कबूल कर दी है और हमने मांगना भी उसी से। बेशक अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले को खूबसूरत उसने बनाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके तो फैल हमें अता करता है, ये दुनिया बनाई है। लेकिन क्या है कि जब हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं तो उसे बहुत पसंद आता है कि मेरा बंदा मुझसे मांगता है, अता करता है। लेकिन बाज़ औक़ात मैंने ये भी बुज़ुर्गों से वाक़यात सुने कि किसी की अगर दुआ नहीं कबूल हो रही होती तो यकीनी तौर पर उसमें उसकी कोई बेहतरी या अल्लाह की तरफ से हिकमत होती है, और अल्लाह ताला कभी किसी मोमिन की दुआ को ज़ाया नहीं करने देता। अगर मिसाल के तौर पर एक मिसाल दूँ, 100 दुआएं उसने मांगी हैं, 30 अल्लाह ताला ने दुनिया में कबूल कर ली, तो 70 आखिरत के लिए रख ली कि मेरा बंदा जब मेरे पास आएगा तब उसको अता करूंगा। लेकिन ये जो मांग रहा है, इसको बज़ाहिर तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन इसके लिए भलाई नहीं है इस दुआ के पूरा होने में। कि अक्सर का नेमुल बदल भी मिल जाता है उसका। बिल्कुल ऐसा ही है। अल्लाह ताला कहते हैं ना, एक दर बंद करने से पहले दूसरा दर खोलता है। तो जो अल्लाह ताला अता कर रहा होता है बंदे को, वो उसकी बेहतरी और हिकमत के लिए अता कर रहा होता है। तो हकीकत में क्या है कि हमें जब कोई दुआ करें और इस यकीन से करें कि अल्लाह ताला कबूल फरमाएगा, और अगर अल्लाह ताला उसको मतलब देरी करता है कबूल करने में या वो दुआ फौरन कबूल होती, तो दोनों हालतों में बंदे के लिए बेहतरी है। अगर फौरन कबूल होगी तो हम लोग ये शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने कबूल फरमा ली, और अगर उसके कबूल होने में देर है तो फिर सब्र करना चाहिए कि यकीनी तौर पे हमारे लिए कोई बेहतरी है जो इस वक्त ये दुआ कबूल नहीं हुई। हकीकत है कि आखिरत में भी हमारा हिस्सा है और दुनिया में भी, और मोमिन की नेकियों का जो अजर सवाब है दुनिया में तो अल्लाह ताला अता करता है, और सारा हमारा जो हमें यकीन है कि हमें आखिरत में मिलेगा। देखिए, एक गैर मुस्लिम अगर कोई अच्छाई और नेकी करता है, अल्लाह कुरान में फरमाता है, तो वो अल्लाह ताला उसकी भी नेकियों का अजर इसी दुनिया में उसको दे देता है, क्योंकि सिर्फ आखिरत में मुसलमान का, मोमिन का हिस्सा है, गैर मुस्लिम का नहीं। और हकीकत क्या है कि हम मुसलमान हैं और अल्लाह ताला ने हमें ये हक नहीं दिया कि हम किसी गैर मुस्लिम को ये कह दें कि आप जहन्नुमी हैं, नहीं कह सकते। इसलिए कब अल्लाह ताला उसे ईमान की दौलत से नवाज दे और वो कहां से कहां पहुंच जाए। हकीकत ये कि हम खुद जो हैं, हम अपने को देखें, अपने आप को पहले देखें, दूसरों को नहीं, लेकिन दुआ करें। और इस दुआ के हिसाब से बड़ी प्यारी एक बात बताऊं आपको, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब कोई मोमिन दुआ करता है ना, और पहले दूसरों के लिए करता है कि अल्लाह ताला इसको ये अता कर दे, कोई खुशी दे दे, या कोई इसको औलाद की खुशी है, या इसको माल और दौलत की खुशी है, तो एक हमारे साथ फरिश्ता खड़ा होता है जो हर दुआ पे आमीन कहता है, और वो ये कहता है कि परवरदिगार पहले इसको। अगर मैं आपके लिए दुआ मांगूं कि परवरदिगार आलम नाज़िया को कामयाबी कामरानी अता फरमा, तो फरिश्ता जो खड़ा होगा वो कहेगा कि पहले अल्लाह ताला इसे अता फरमा। यानी हम दूसरे के लिए अगर मांगेंगे तो पहले हमें अपने खुद मिलेगी, अपने लिए मिलेगी। यकीन करें कि नाज़िया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दूसरे के लिए मांग के देखो, करके देखो, अपने लिए मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ी। सुभान अल्लाह। ये हमारा यकीन होना चाहिए, और हमारे दिल में अपने मुसलमान बहन भाइयों के लिए इतनी मोहब्बत होनी चाहिए कि ये हम एक इमारत के मानंद हैं, एक ईंट भी हिली तो वो इमारत ढह सकती है। तो इसी तरीके की मोहब्बत दूसरे से होना चाहिए, और इस यकीन के साथ होनी चाहिए कि जो उसके लिए मांगा अल्लाह ज़रूर अता करे। बहुत आपने अच्छी बात कही, ये इतनी पॉजिटिव बात है और ये सच्ची बात है कि आप पहले हमेशा आपने देखा होगा कि कहीं पर भी आप जाते हैं जहाँ पर दुआ का एहतमाम होता है, वहाँ पर सबसे पहले पूरे कायनात के लिए दुआ की जाती है, सबके लिए दुआ की जाती है, और फिर जो है अपने लिए दुआ की जाती है। तो यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस इस चीज़ की है। अच्छा, एक और ये चीज़ कि जहाँ पर लोगों की दुआएं कबूल नहीं होती, हमने ये भी सुना है कि किसी से नाराज़गी होती है, या किसी का दिल दुखाया हुआ होता है, या कहीं पर कोई ना कोई इंसान ने जो है किसी के साथ कोई पैसे का गबन किया होता है, तो उन लोगों की दुआएं जो है कबूल तो उन पर मुश्किलात भी ज़्यादा आ रही होती हैं। देखिए, हकीकत क्या है कि अल्लाह ताला जिस बंदे को कोई दर्जा, कोई मकाम देना चाहता है, उसको परेशानियों मुसीबतों में मुब्तला करता है। मैंने शुरू में हदीस बताई थी, और उसके साथ साथ सब्र भी देता है, तो वो मकाम हासिल कर लेता है वो बंदा। लेकिन अगर जब किसी पे परेशानियाँ ज़्यादा आ जाती हैं, मुसीबत ज़्यादा आ जाती हैं, और आपने जैसे ये कहा कि दुआ का एहतमाम किया जाता है,
देखिए नाज़िया, कहीं दुआ मांगने वाले 100 बैठे हों, उनमें से अल्लाह ताला को किसकी दुआ किसी न पसंद आ किसी की जाए, दुआ, किसकी हाँ। एक ऐसी दुआ पसंद आ जाए जिसकी बिना पे वो तमाम की दुआएं कबूल करे। अल्लाह ताला को तो पसंद आने की देर होती है ना। तो हकीकत क्या है कि जब हम दुआ मांगे तो सबसे पहले दूसरों के लिए मांगें, दुआ का एहतमाम करें, और साथ साथ इस यकीन के साथ करें कि हम जो मांग रहे हैं कि अल्लाह ताला ज़रूर कबूल फरमाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर अब कभी हमें जब ये ऐसा लगता है शुरू में कि ये दुआ कबूलियत के दर्जे पे नहीं जा रही है, जो आपने शुरू में बात की, देखें बात क्या नाज़िया, हलाल माल, हाँ। रोटी हलाल हलाल रोजी, रोजी। अल्लाह ताला सबको अता करे, ठीक है, उसकी बरकत ही अलग है। अच्छा एक बात बताओ नाज़िया, देखें कोई शख्स अगर कोई गबन का पैसा लेके या कोई धोखे से कोई पैसा हासिल करता है, मिसाल के तौर पे मिसाल देती हूँ, जैसे 1 लाख रुपए उसके पास है, उसे हज पे जाना है, ये चोरी का उसने पैसा लिया है और हज पे गया, आप बताएं कि कबूल होगा? तो अल्लाह के वो सामने जो से जरिया जवाब देना ही पड़ेगा ना, जायज तो पहले नहीं उस है, पैसे का जवाब देना पड़ेगा, आया का जरिया ही जायज नहीं है नाज़िया, तो फिर इबादत कैसे कबूल होगी, दुआ कैसे कबूल होगी? तो जो रोटी रोजी अल्लाह ताला दे रहा है, मेहनत से कमाएं, और उस मेहनत में बरकत तो अल्लाह ने डालनी है, लेकिन जब हम कोई नेकी का काम करने जाएं तो पहले ये तो देख लें कि अगर दुआ कबूल नहीं हो रही है तो उसकी वजह क्या है, उसकी पीछे वजह क्या है। बिल्कुल, इंसान कितने लोगों के दिल दुखा देता है और वो बाद में फील भी नहीं करता, और फिर वो अल्लाह से शिकायत कर रहा होता है कि मेरे साथ ये नहीं हो रहा, मेरे साथ ये नहीं हो रहा, मेरी ये चीज़ें सही नहीं हो रही, मेरी वो चीज़ें सही नहीं हो रही। तो ये जो शिकायत है ना, ये बड़ी ख़तरनाक होती है। पहले इंसान अपना एहतसाब करे। अपना एहतसाब कैसे कर सकता है वैसे? किस तरह लेकिन से आसिया, अपने आप को परखे किस तरह, जांचे किस तरह, जाने किस तरह? अल्लाह ताला जब किसी बंदे को अपने करीब करना चाहता है, अगर किसी मकाम पे फाइज करना चाहता है, तो सबसे पहले उसे वो ये सलाहियत अता करता है कि वो अपनी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ देख सकता है कि मेरे अंदर कितनी अच्छाइयाँ और कितनी बुराइयाँ हैं, मैं क्या चीज़ कम कर सकता हूँ और क्या सही कर सकता हूँ। ये जो मेरी अल्लाह ताला ने एक वजूद बनाया है, ये बंदों को किस तरीके से इससे काम दे सकता हूँ, मतलब मैं किसकी क्या मदद कर सकता हूँ, चाहे मैं तालीम के हवाले से कर सकता हूँ या मैं अपनी दौलत के हवाले से कर सकता हूँ, या कोई ऐसी चीज़ जिसकी बिना पे बंदे की मदद हो। तो जब अल्लाह ताला किसी को कुछ अता करना चाहता है ना, तो सबसे पहले उसे अपने अंदर की खामियां नजर आना शुरू हो जाती है। मेरे अंदर ये बुराई है, मुझे इसको ख़त्म करना है, इसको ठीक करना है, और जब वो उन चीज़ों को रोकता है, कम करता है, तो खुद ब खुद वो अच्छाई के रास्ते पे चलना शुरू हो जाता है। देखिए अल्लाह ताला ने पूरा पूरा इख्तियार दिया बंदे को कि इधर चलोगे सीधे हाथ पे तो अच्छाई है, इधर चलोगे तो बुराई है। हाँ। मिसाल के तौर पर जैसे हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से अर्ज़ की किसी ने कि मैं ये कैसे कर सकता हूँ कि जब हर चीज़ अल्लाह की मदद से और उसकी मर्जी मंशा से होती है कि मैं आधा मतलब अच्छा करूँ बुरा करूँ, तो अल्लाह ताला ने इस चीज़ का क्या इख्तियार दिया? तो हज़रत अली ने फरमाया कि एक टांग उठा के एक टांग पे खड़े हो जाओ। काफ़ी देर खड़ा रहा, तो हज़रत अली ने फरमाया कि दूसरी टांग भी उठा लो। उसने कहा ये मेरे इख्तियार में नहीं है। तो हज़रत अली ने फरमाया यही समझाना चाहता था, आधा इख्तियार दिया है अल्लाह ने और आधा नहीं है, जितना दिया है उतना तो करो, बाकी का भी हो जाएगा पूरा। लेकिन हकीकत क्या है कि इंसान इस चीज़ को समझता नहीं है कि परवरदिगार ने उसे पूरा पूरा समझा दिया कि ये क्या सही, ये क्या गलत, ये क्या अच्छा रास्ता, ये क्या बुरा रास्ता, तो फिर हमारे लिए क्या मुश्किल है। सुभान अल्लाह। और देखें हकीकत नाज़िया, हमारा दीन इस्लाम जो इस वक्त हम कहें कि एक पका पकाया हलवा हमें मिला है, अल्लाह के नबियों ने वलियों ने शदीद तरीन तकालीफें उठाई हैं सरकश लोगों को राह रास्त पे लाने के लिए, और वो दौर भी मुश्किल दौर थे, बहुत मुश्किल दौर था। आप कुरान पाक का तर्जुमा बातफसीर पढ़ें तो आपको अंदाजा होगा कि हमारे अंबिया किराम ने कितनी तकलीफ आपके लोगों की तो ज्यादा पूछ होगी वो इस तरह से कि आपके पास हर तरह से जरिया मौजूद है, सहूलत मौजूद, कि आप सहूलत है कि आप आराम से जो है पूछ भी सकते हैं। आपको टेलीविजन मिला हुआ है जहाँ पर आज जिस तरह हम अच्छी बातें कर रहे हैं, आप ये सुन सकते हैं, ये सुनकर बल्कि लोगों तक पहुँचाए और खुद अमलन अपनी जिंदगी में लाए। इंसान को ना अपने आप को वैसे ना परखना चाहिए कि कहाँ पर उसकी क्या मुश्किलात हैं और वो उस मुश्किल पे पहुंचा क्यों है। एक तो ये कि उसकी आजमाइश भी हो सकती है, दूसरा है कि अपना ना बैकग्राउंड में भी मैं कहती हूँ जाकर देखना चाहिए, कहाँ कहाँ किसके साथ कैसा सलूक, किसके साथ क्या वो। यहाँ तक कि हमने तो ये भी सुना है कि अगर जलन हसद भी हो तो भी इंसान की आगे कामयाबी की सीढ़ी रुक जाती है। क्यों? इसलिए कि अगर कोई शख्स किसी से हसद करता है, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब कोई शख्स किसी से हसद करता है तो बेसिकली वो अपनी ही नेकियों को जला रहा होता है, क्योंकि हसद करना ऐसा है कि जैसे आपने अपनी नेकियों को अपने हाथ से जला दिया, जैसे आग सूखी लकड़ी को जलाती है, इस तरीके से आपने नेकियों को जला दिया। और हसद क्यों किया जाता
چاہ رہا ہے یہ بتائیں پہلے کہ رب العالمین کسی کو کچھ عطا کر رہا ہے تو نعوذ باللہ آپ کو اس کی عطا سے کوئی پرابلم ہے؟ کیوں آپ کو حسد کا یہ اندر سے پیدا ہو رہا ہے؟ آپ اس چیز کو پہلے دیکھیں کہ یہ چیز اگر میرے اندر آ رہی ہے تو کیوں آ رہی ہے نا، اس چیز کو ختم کرنا چاہیے. اور حقیقت کے نازیہ یہ کوالٹی بھی پھر ہر کسی میں نہیں ہوتی، یہ بھی اللہ کی خاص عطا ہے کہ اپنے اندر کی برائیاں اور اپنے اندر کی اچھائیاں بندہ دیکھ سکتا ہے کہ کتنی اچھائیاں میں کرتا ہوں اور کتنی برائیاں موجود ہیں، ان کو میں ختم کیسے کر سکتا ہوں. اللہ تعالیٰ جب قیامت میں جزا اور سزا کا معاملہ نمٹا رہا ہوگا، مطلب عطا کر رہا ہوگا لوگوں کو، تو اللہ تعالیٰ اتنا غفور و رحیم ہے کہ اگر کسی بندے کی ایک نیکی ہے تو اللہ تعالیٰ، اور ایک کی 99 نیکی ہیں، اگر ایک نیکی والا یہ کہتا ہے کہ پروردگار اس کی تو 99، اس کو میری ایک نیکی دے دے تاکہ یہ جنت میں چلا جائے، تو اللہ تعالیٰ اسے بھی بخشش عطا کرے گا، تو نے اس وقت نیکی کری، اسے دے دیا، عطا کیا. لیکن اگر کوئی شخص ایسا ہے جسے جہنم میں بھیجنا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا فرشتوں سے اس کو ذرا جھاڑ کے دیکھ لو، شاید کوئی نیکی نکل آئے کہ میں اس کی بنا پہ بخش دوں. تو پروردگار جو آزمائش دیتا ہے نا تو اس سے بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اور اگر اس کو وہ سزا دیتا ہے تو بندہ دور ہو جاتا ہے. بالکل بالکل. عبادات جو ہیں وہ بالکل بہت اچھا ہے، بالکل کرنی بھی چاہیے. جب آپ کو جو ہے اس کا اہتمام بھی کرنا چاہیے پراپرلی. جس طرح ہم کہیں جانے کے لیے تیار ہو رہے ہوتے ہیں تو عبادات کے لیے بھی اپنے آپ کو اتنا ہی آپ کو جو ہے مائنڈ کو بھی اپنے تیار کریں، آپ اپنے سول کو بھی تیار کریں جو انسان کے اندر کی روح ہوتی ہے، اور پھر آپ نے جو ہے اچھے اہتمام کے ساتھ بات کرنی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ زندگی میں ڈاکٹر صاحبہ یہ ہے کہ ہم ہر پل ہمارا ایک ایک قدم جو ہم چل رہے ہوتے ہیں وہ گناہ و ثواب کے اس پہ تولا جا رہا ہوتا ہے، ایک ایک قدم، کیونکہ ہمارے فرشتے تو ہر چیز لکھ رہے ہیں نا. فرشتے تو لکھ رہے ہیں. بالکل بالکل. تو یہاں پر لوگوں کو اس وقت وہ جو احساس ہوتا ہے وہ کیوں ختم ہو جاتا ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں اور فرشتے ہماری ہر چیز لکھ رہے ہیں؟ بالکل ایسے ہی. تو یہ احساس جو ہے یہ کیسے دلایا جائے گا، کیسے آ سکتا ہے؟ یہ نازیہ اللہ کی عطا ضرور ہے بے شک، لیکن انسان کو ایز اے مسلم اپنا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے. حقیقت میں کیا ہے کہ ہمیں یہ پتا ہو کہ ہمارے جو 24 گھنٹے فرشتے ہمارے کندھوں پہ بیٹھے، یعنی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جتنی مخلوق بنائی ہے، جتنے انسان بنائے، اسے 100% تو یقین ہے کہ فرشتے ڈبل ہیں، ایک کے پاس 2 موجود ہیں جو سب کچھ لکھ رہے ہیں. بالکل. اگر جو آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، اگر میں آپ کی کوئی چھوٹی سی ویڈیو بناؤں اور میں کہوں نازیہ جی آپ یہ ہیں، تو آپ انکار نہیں کر سکتی نہیں جی میں یہ نہیں ہوں. اسی طرح یہ فرشتے لکھ رہے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے اعمال دکھائے گا تو ہم نہیں کہہ سکتے نہیں پروردگار میں نے یہ نہیں کیا. تو ہمیں یہ چیز تو دل میں رب کا خوف رکھنا چاہیے. دیکھیں حقیقت میں کیا ہے، اللہ کا خوف کیا ہے؟ جو اس نے عطا کی ہے، جو اس نے فرمایا ہے کرنے کو وہ کریں، اور جس سے روکا ہے اس سے رک جائیں، یہ اس کا خوف ہے. تو یہ جو فرشتے بیٹھے ہیں نا، یہ 24 گھنٹے دن رات لکھ رہے ہیں. لیکن جب اگر اللہ تعالیٰ سے بندہ اپنے گناہوں کی توبہ کرتا ہے تو اللہ کی عطا سے یہ مٹا بھی دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا. لیکن حقیقت کیا ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے پاس 2 فرشتے موجود ہیں، لیکن اگر ہمیں یہ دکھ رہے ہوتے نازیہ بتائیں پھر ہم کیا کرتے؟ اللہ تعالیٰ کی ہر کام میں بہتری اور حکمت ہے کہ فرشتے موجود ہیں، لیکن ہم چونکہ دکھتے نہیں ظاہر سے ہوتے، وہ نظر نہیں ہے ہماری. تو اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں وہی بہتری اور حکمت ہے. ہم اگر یہ دیکھنے لگے، ہر وقت یہ سوچنے لگے فرشتے لکھ رہے ہیں، تو پھر اچھا ہماری سوچ کو بھی لکھا جا رہا ہوتا ہے. ہماری سوچ کو بھی لکھا جا رہا ہوتا ہے. بالکل. اور سوچ کا ثواب ڈبل کیوں ہے کہ اگر آپ ایک اچھی سوچتے ہیں اس میں دکھاوا نہیں ہوتا، اس میں ریاکاری نہیں ہوتی. جو آپ سوچتے ہیں نیکی کی بات وہ رب العالمین جانتا ہے یا ادھر لکھ لیا جاتا ہے. تو حقیقت میں کیا ہے، اور ایک بات بولوں نازیہ کہ جب اللہ نے آپ کو کوئی عطا کی ہے نا کوئی چیز، اور ہم اللہ کی راہ میں اگر دے رہے ہیں، تو حقیقت میں اگر ہم دیکھیں گے جی یہ میں نے چیز دی ہے ضائع نہیں، یہ یہاں سیف ہو رہی ہے جا کے ہماری آخرت کے لیے. جو دوسرے پہ استعمال کر دیا اس کی مدد کے لیے کر دیا، تعلیم تربیت یا کھانے پینے پہننے اوڑھنے میں، وہ سیف ہو گیا جا کے. جو آپ نے ادھر لگایا، چاہے آپ 2000 کا ڈریس پہنے یا 10 کا، وہ اتنا ہی رہے گا. تو بہتر یہ کہ دوسرے کو دیں کریں تو آپ کا یہاں سیف ہوگا، آپ کی آخرت کے لیے اچھا ہوگا. بالکل جی، بہت بہت شکریہ. اب ہم مزید آپ سے بات کریں گے. اور خدیجہ جی آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے شو میں تشریف لائے. صرف اتنا آپ بتائیے گا کہ آپ نے کب سے آپ نعت پڑھ رہی ہیں؟ 7 ایئرس تو مجھے پروفیشنل لیول پر ہو گئے تھے، اور اس سے پہلے بھی آپ سیکھتے رہی ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے بہت اچھے. تو بھی ہم بریک پہ جانے سے پہلے آپ سے جو ہے ہم نعت سنیں گے. ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے. آپ جیسے ہیں ویسی عطا
چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا کیجیے، کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، آپ کو علم ہے ہم کو کیا چاہیے، آپ کو علم ہے ہم کو کیا چاہیے، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، اور بھر کے جھولی میرے سرکار نے، بھر کے جھولی میرے سرکار نے، کہ مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے، مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے۔ صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد، منگتے ہاتھ نہ لوٹیں، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو، میں کیا اور کیا میری حقیقت، سب کچھ ہے سرکار کی نسبت، میں کیا اور کیا سب کچھ ہے سرکار کی نسبت، میں تو برا لیکن میری لاج ہے کس کے ہاتھ نہ پوچھو، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو، اور عشق نبی عشق نبی
बख्शिश की ज़मानत, इससे बढ़कर दस्ते तलब में है भी कोई सौगात न पूछो उनका करम, फिर उनका करम है, उनके करम की बात न पूछो। ज़ाहिर में तस्कीन दिलो जा, बातिन में मेराज दिलो जा, नामे नबी फिर नामे नबी है, नामे नबी की बात न पूछो उनका करम, फिर उनका करम है, उनके करम की बात न पूछो। कि खालिद में बस इतना कहूँगा कि जाग उठा अश्कों का मुक़द्दर, इश्क़ नबी में रोते रोते कैसे कटी है रात न पूछो उनका करम, फिर उनका करम है, उनके करम की बात न पूछो। हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम अनम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे शो में तशरीफ लाने का। बहुत खूबसूरत आपने नात पेश की। बेटा कब से पढ़ रहे हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह एक चीज़ होती है ना जो वर्षे में मिल जाती है तो उसकी बात ही अलग होती है। एक अगर मैं ये कहूँ कि मतलब बचपन से पढ़ रही हूँ तो ये कॉमन सी बात हो जाएगी। एक बच्चे को शुरू से जो चीज़ मिल रही होती है ना, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मिली है, और ये मेरे लिए बहुत फख्र की बात है हाँ। कि मेरे लिए बहुत फख्र की बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये चीज़ वर्षे में मिल गई। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आपने बहुत खूबसूरत नात पेश की, आप बहुत प्यारा पढ़ रहे हो। अल्लाह आपको बहुत जज़ा दे और भी आप आगे कामयाब होते चले जाओ। जी डॉक्टर सादिया, आप हमारे साथ हैं, डॉक्टर सादिया मोइन, और हमने पहले सब्र शुक्र और अल्लाह पर तवक्कल पे बात की थी। अब हम बात करेंगे नेकी पर, क्योंकि बात कुछ इस तरह है कि जब हम कह रहे होते हैं कि दुआएं कहाँ पर कबूल होती हैं, दुआएं कैसे कबूल होती हैं, और अल्लाह ताला जिन लोगों को नवाज रहा होता है, ये भी एक बड़ी जो है ना अल्लाह ताला के एक कहते हैं ना तोहफे होते हैं जो इंसान को मिल रहे होते हैं, जो दुनिया में भी मिलते हैं और आखिरत में भी मिलते हैं। लेकिन एक बेहतरीन तोहफा इंसान का कि इंसान जब वो इंसानियत जिसे कहते हैं ना ह्यूमैनिटी, वो अपने अंदर लेकर आए और उसके बाद वो नेकी के काम करे। इसे नेकी के कामों को क्या कहेंगे, पहले तो हम थोड़ा सा अगेन डिफाइन करेंगे ताकि लोगों को समझ आए कि नेकी के काम है क्या। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़िया। वंस अगेन वालेकुम अस्सलाम। ये मैंने नेकी करी, मैंने अच्छा। आपके ऊपर सलामती भेजी, नेकी करी, आपने जवाब दिया, मुझे पलट के सलामती भेजी, ये नेकी करी। ठीक है, हमारा मजहब इस्लाम, हमारा दीन इतना खूबसूरत मजहब है कि इसमें छोटी छोटी अच्छाइयाँ करने पे हमें नेकी का सवाब मिलता है। बिल्कुल जी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इंसान 360 जोड़ के साथ पैदा किया गया है। अगर वो किसी रास्ते से कोई कांटा, पत्थर, इवन कि कोई हड्डी पड़ी हो, वो हटा देता है और वो नेकियां करता जाता है, और जिस दिन ये नेकियां 360 तक पहुंच जाती हैं, यानी उसके जिस्म के आज़ा के जोड़ के बराबर, तो वो उस दिन ज़मीन पे ऐसे चलता है जैसे उसने तमाम गुनाहों से अपने आप को पाक करवा लिया हो। तो हम अगर छोटी से छोटी अच्छाई भी करते हैं तो हमें नेकी का सवाब मिलता है। जैसे कहते हैं ना, नेकी कर दरिया में डाल, वक्त पड़ने पे उभरेगी। मैं तो ये कहूँगी कि नेकी करने के बाद हमें ये दुआ किसी को देनी चाहिए कि इस नेकी की बिना पर आपके ऊपर कोई मुश्किल परेशानी आए ही ना। बिल्कुल, ये है दुआ जो आप दूसरे को दे सकते हैं कि आपने जो नेकी करी, अल्लाह इतनी जज़ाए खैर दे कि इस
की वजह से परेशानियां आने से पहले ही चली जाए। वाकई, और हमने देखा है कि जिस तरह राह पे चलते हुए भी बात कर रहे हैं ना, कि राह में चलते हुए, ये तो देखें लोग बड़ी कॉमन सी बात हो जाती है, अक्सर हम ये बात कर भी रहे होते हैं और लोगों कि राह में चलते हुए भी लोगों की आप मदद करें। राह में चलने के साथ साथ आप जिस डेजिग्नेशन पे बैठे हुए हैं, अगर आप कपड़े बेच रहे हैं तो वहाँ पर ईमानदारी से बेचे, सही तरीके से बेचे, अल्लाह आपको जज़ा देगा और वहाँ पर भी नेकी बिल्कुल होगी। ऐसे ही। जिस तरह अगर आप कोई जूस बेच रहे हैं, खाना बेच रहे हैं, तो उसमें आपने कोई भी बेईमानी नहीं करनी है, ईमानदारी से आपने बेचना है चीज़ को, वहाँ पर भी आप नेकी कर रहे हैं। आप सोचें कि एक एक चीज़ आप बेच रहे हैं तो उसमें वो ईमान की बात आ जाती है ना, कि आपने बेईमानी नहीं की है, ईमानदारी से बेचा है, हर बेचने पर चीज आपको नेकी मिल रही है। इंसान सोचता है इन चीजों को। बिल्कुल ऐसे ही। देखिए नाजिया, आपने ये बेचने वाली बात की बड़ी प्यारी, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो तराजू होता है ना किसी चीज को तोलने का, इसका बैलेंस बराबर रखो। क्यों? कि अगर जो आप सामान किसी को दे रहे हो उसमें कम और ज्यादा करोगे, आपको तो पता है और अल्लाह को पता है, लेने वाले को नहीं मालूम। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो नाप तोल में कमी करे वो हम में से नहीं है। इतनी बड़ी बात फरमा रहे हैं। एक मरतबा किसी दुकान के सामने से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जा रहे थे, तो बाहर जैसे सामान रखा होता है दुकान के, तो एक गेहूं का और जौ का वो रखा हुआ था थैला। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्ते करम ऐसे रखा तो उसके अंदर थोड़ा सा पानी था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, ये इसकी बात क्यों नहीं बताई तुमने कि इसके अंदर पानी मौजूद है, इस मीन कि इसमें नुक्स है थोड़ा सा। तो जब अगर किसी को कोई चीज दो, देने से पहले उसका नुस्ख बता दो, अगर उसमें कोई नुस्ख है तो वो नुस्ख जो होगा आपको, अगर सामान ना भी बिका लेकिन कम से कम आपको नेकी जरूर मिलेगी कि आपने एक अच्छा काम करा, किसी का आपने नुकसान नहीं करा। ठीक है ना? हाँ। और सबसे बड़ी बात क्या है, जब आप उस माल में कोई परेशानी है, कोई मुश्किल है या वो कोई खराबी है, आप उसको बता के बेचोगे तो उसका अजर सवाब देने वाला अल्लाह बैठा हुआ अल्लाह है। ठीक है ना? तो हम ये ना देखा करें कि ये इसको तो मैं दे दूंगा, मुझे मुनाफा भी मिल जाएगा। बेशक मुनाफा मिलेगा लेकिन मुनाफे में बरकत नहीं होगी। सही है ना? क्योंकि हकीकत क्या है, नेकियों का दारो मदार नियत पर है। ठीक है ना? आपकी जितनी नियत, जैसी नियत है आपको अल्लाह ताला वैसी अता करता है। आपकी नियत में अच्छाई है किसी के लिए तो अल्लाह ताला आपको बहुत अता करेगा, और अगर आप ये चाहते हो उसको धोखा दे दूंगा तो क्या पता चलेगा। लेकिन हम रब्बुल आलमीन को तो धोखा नहीं दे सकते ना, वो हर जगह देख रहा है और हमारे तो कल्ब हमसे ज्यादा करीब है कल्ब से। लेकिन क्या है कि अगर हमें किसी के लिए अच्छाई करें, किसी के लिए नेकी करें, तो अपना दिल भी साफ रखें। ठीक है ना? और बात क्या होती है कि जितनी नेकियां आप करेंगी तो उसका अजर आपको मिलेगा। अगर आप किसी के लिए अच्छा करेंगी तो अजर मिलेगा, और अगर नेक नियति से करेंगी तो बहुत ज्यादा मिलेगा। अच्छा, एक चीज बताइएगा कि अक्सर औकात ऐसा होता है, इंसान थोड़ा सा ना, आपको पता है कि सवाल से पहले मुस्कुराहट है आपके चेहरे पे, सेल्फिश भी हो जाता है, और अक्सर ऐसा होता है कि वो कुछ मांगता है या कोई नेकी कर रहा होता है तो उसमें उसका कोई मतलब भी होता है कि वो अल्लाह ताला, मैं देखिए नेकी कर रहा हूँ, अल्लाह ताला आपने मुझे फिर ये इसके बदले ये देना है। तो क्या इसमें भी क्या नेकी ही होती है शामिल, या इसमें इंसान का खलूस या वो नहीं रहता, मतलब क्या होता है ये? देखिए हकीकत क्या है नाजिया, मैं एक वाक़या बताती हूँ। बीबी राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने, एक गरीब आदमी आया, रोटियां 2 रखी थी उनके पास। उन्होंने जब ये बात सुन रखी थी कि अल्लाह की राह में 1 2 तो 10 मिलता है, 2 2 तो 20 मिलता है, तो उन्होंने वो उस गरीब फकीर को रोटियां 2 दे दी और इस यकीन के साथ दी कि अल्लाह पाक मैंने आपकी राह में ये 2 दी हैं, अब आपने मुझे इसके बदले 20 देनी है। यकीन करें, अगली किसी घर से दावत का खाना आया और उस खाने में 20 रोटियां मौजूद थी साथ में। अच्छा। उनका यकीन था कि मेरे रब की राह में एक मोहब्बत से दिया है। हाँ। जी, तो वो रोटियां 20 बन के उनको वापस मिल गई। हाँ। तो ये हमारे रब से हमारी मोहब्बत भी। और हकीकत बताए नाजिया कि हम जब अल्लाह ताला से अपनी बात करते हैं, दुआ करते हैं, तो ऐसा नहीं लगता कि अल्लाह सिर्फ मेरा है, लगता है ना। ये तो नहीं कहते कि नहीं अल्लाह ताला ये मैंने इसके लिए ऐसा कर दिया तो आप मुझे सजा दें, अल्लाह में गलती होगी माफ कर दे। लेकिन हमारे रब से मोहब्बत का आलम ये है कि हम कहते हैं अल्लाह तो सिर्फ मेरा है, वो सबका है, तमाम कायनात का है। ठीक है ना? तो हकीकत क्या है कि ये नियत सोच के देना परवरदिगार आपकी राह में दिया है, और इस यकीन के साथ दिया है कि आपकी अता से वो डबल मिलेगा। तो इसमें रब का और बंदे का मामला है, इसमें कोई रियाकारी नहीं है। इसमें कोई रियाकारी नहीं, बिल्कुल। और इंसान जो है वो अगर जितना मांग रहा है और वो जो है इस बदले भी मांग रहा है, तो मतलब खिदमत कर रहा है, तो कोई बात नहीं, ठीक है, कम से कम अल्लाह के राह में वो खिदमत तो कर रहा है ना, किसी तरह दे तो रहा है ना। हाँ। अच्छा, इंसानियत जब इंसान के अंदर आती है, ह्यूमैनिटी के लिए काम आता है, ये क्या नेचुरल होता है या इंसान का क्या, कैसे ये जो है ह्यूमैनिटी के काम इंसान शुरू कर देता है? ये असल में नाजिया, किसी की मदद करना, किसी की
وہ جذبات آپ کے اندر یہاں موجود ہوتے ہیں آپ کے دل میں, ٹھیک ہے نا. آپ جب تک انسان کو انسان نہیں سمجھیں گے, یا آپ سمجھیں گے اگر اللہ نہ کرے یہ وقت مجھ پر ہوتا تو میں کیا کرتا, کوئی اور میری مدد کرتا. لیکن اگر آپ کسی کی مدد کریں, قدرتی طور پر اللہ نے نیکی میں اتنی اچھائی رکھی کہ وہ آپ کو خوشی دیتا ہے اندر سے. نیکی کا کام آپ کو خوشی دیتا ہے اور بدی کا کام آپ کو ایک طرح کا خوف ڈالتا ہے. سب سے بڑی بات کیا کہنا چاہیے کہ سب سے بہترین دوست انسان کا اپنا ضمیر ہے. آپ کو اچھی بات پہ خوش ہونے کا موقع, آپ کا دل خوش ہوتا ہے, آپ کا ذہن خوش ہوتا ہے. اگر آپ اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ غلط کام کرتے, دھوکہ کرتے, تو کہیں نہ کہیں نازیہ ہم ہلتے ضرور ہیں کہ یہ غلط ہو گیا ہے. چاہے اس چیز کو وہ ہم شو کریں نہ کریں, لیکن دل میں ہماری بات ہوتی ہے یہ غلط ہے. میں سمجھتی ہوں اللہ تعالیٰ نے بندے کو اتنی عقل سمجھ, اتنی سوجھ بوجھ عطا کی ہے کہ وہ صحیح کو صحیح بھی سمجھتا ہے, غلط کو بھی سمجھتا ہے کہ یہ غلط ہے, لیکن وہ کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس چیز کو ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ ہم کسی کی مدد کر رہے ہیں, اگر ہم کسی کو کچھ دے رہے ہیں, چاہے وہ تعلیم ہے, چاہے اس کی رزق کے حوالے سے کوئی مدد کریں, تو یہ آپ کے اپنے انر فیلنگز ہیں, یہ آپ اچھائی کرنا چاہتے ہیں. اور اللہ, جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی راہ پہ چلنا چاہتا ہے, اچھائی کی طرف چلنا چاہتا ہے, اللہ فرماتا ہے وہ 1 قدم بڑھتا ہے تو میں اس کے لیے 10 قدم بڑھ کے اس کو تھامتا ہوں. بالکل جی. تو ہم جب کسی کی مدد کریں گے تو ہم خود بخود ہی اچھائی کے راستے پہ چلنے لگیں گے. صحیح بات ہے. تو یہاں پر جو ہے کہ ایک دوسرے کو دیکھ کر بھی جو ہے کم از کم آپ اچھی باتیں سیکھیں. اور یہ جو کہتے ہیں نا کہ نیکی کی بات بتانی چاہیے کہ آپ نیکی کریں, اسے دوسرے لوگ سیکھتے ہیں. بعض لوگ ہوتے ہیں کہ نہیں ہم نیکی کر کے ہم بتانا نہیں چاہتے ہیں, بتائیے گا نہیں, ایسا مطلب کیوں ہوتا ہے کہ یہ دو ڈیفرنٹ چیزیں جو ہے. دیکھیں دونوں باتیں اس طریقے سے نازیہ کہ کچھ نیکیاں بتانی چاہیے اس لیے کہ دوسرا اس چیز کو کرنے کا عادی ہو جائے, فالو بھی کرے. اگر آپ, اور حقیقت کیا ہے, پہلے تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر صدقہ دو, کسی غریب کی یا کسی سفید پوش کی ایسی مدد کرو کہ دوسرے ہاتھ کو نہ پتہ چلے, تو آپ ضرور نیکی کو چھپا لیں اس وقت کہ کس کی عزت کا مان رکھنا ہے ہم نے. اور اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ کام میں کرنے جا رہی ہوں, اگر یہ ایک غریب کا گھر ہے, یہ دوسرے غریب کا گھر ہے, یہ تیسرے غریب کا گھر ہے, میں ایک میں راشن دوں گی, تو میں اپنے دوست احبابوں میں, رشتہ داروں میں, بہنوں میں بات کہہ سکتی ہوں کہ ایک کا راشن میں کر رہی ہوں تو 2 کا آپ بھی کر سکتے ہیں. اس طرح پہ کنٹریبیوشن بھی ہو جاتا ہے. جی, کنٹریبیوشن کی بات آتی ہے تو ہمارے ساتھ ایک بہت ہی اہم مہمان ٹیلی فون لائن پر موجود ہے, اور وہ ہیں عالیہ سارم برنی ٹرسٹ کے حوالے سے ہم ان سے بات کریں گے. بہت کام کر رہی ہیں اور بہت خواتین کے لیے کام کر بھی رہی ہیں, اور آگے ان کو اللہ تعالیٰ اور جزا دے کام کرنے کے لیے. بڑا دل ان کا جو ہے نیکی کی طرف ہے, اور یہ وہ پرسنالٹی ہیں جن کو دیکھ کر لوگ مزید نیکی کی طرف آتے ہیں. السلام علیکم عالیہ جی. وعلیکم السلام. کیسی آپ, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا کرم ہے. آج تو ہم اس طرح بات کریں ٹیلی فون پہ, انشاءاللہ آپ ہمارے شو پہ بھی ضرور تشریف لائیے گا, کیونکہ آج نیکی پر بات ہو رہی ہے. تو ہم نے کہا آپ سے بہتر شخصیت اس حوالے سے کوئی بات ہی نہیں کر سکتا, کیونکہ آپ بہت کام کر رہی ہیں انسانیت کے لیے, اسپیشلی خواتین کے لیے. اس حوالے سے بتائیے گا ذرا کچھ. نیکی تو میں سمجھتی ہوں ہر انسان کے دل میں مقصود ہوتی ہے, اور پیدائشی طور پہ وہ اس نیکی کی جذبے کو, نیت کو لے کر پیدا ہوتا ہے. یہ تو دنیا ہے جو ہمیں دنیا داری میں الجھا دیتی ہے, اور ایسا الجھا دیتی ہے جو اپنے آنے کا مقصد بھول جاتے ہیں. میں اپنے آپ کو ان خوش نصیب لوگوں میں سمجھتی ہوں جسے اللہ نے چنا. نیکی ہم اپنے دل کی خوشی کے لیے کرتے ہیں, اس سے فائدہ تو دوسرے کو پہنچتا ہے, لیکن سکون ہمیں ملتا ہے. اور جو جب آپ کسی کھانا کھلانا ایک ایسی نیکی ہے جس کو اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتا ہے. کسی بھوکے کے منہ پر جو پہلا نوالا جاتا ہے اور جس مسکراہٹ اور سکون کے ساتھ آپ کو دیکھتا ہے, وہ مسکراہٹ اگر آپ نے زندگی میں ایک بار بھی ایکسپیرینس کی ہے تو آپ کو ہمیشہ یاد کرے گی. ابھی 2-3 دن پہلے کی بات ہے کہ ہم ایک جگہ انوگریشن کے لیے گئے تھے, تو وہاں اسپیشل بچے تھے. ان میں سے ایک بچے کے پیر کے جوتے کے لیسز کھلے ہوئے تھے. تو میں نے جس وقت اس کے وہ لیسز باندھے ہیں, اور اس نے جس طرح سے مجھے دیکھا ہے, جبکہ وہ بچہ نارمل بھی نہیں تھا, اسپیشل چائلڈ تھا, میں سمجھتی ہوں سب کچھ بھول گئی میں, اور اس کی اسمائل مجھے یاد ہے. اور تحفہ یہ ملا کہ اس کے ایک جوتے جو میں نے صحیح کیے تو اس نے دوسرا پیر بھی میری طرف کیا. ارے واہ, تو یہ بہت خوبصورت سا جذبہ ہوتا ہے اس کو محسوس کرنے کی, اور یہ روح میں اترتا ہے. یہ پیسوں سے نہیں تولا جا سکتا, اس طرف سے آپ نہیں لے کے جج کر سکتے,
یہ وہ چیز ہے, یہ فیلنگ ہے جو آپ کے اندر آ جاتی ہے. بالکل. عالیہ جی ایک چیز بتائیے گا, جب آپ نے نیا آپ کی شادی ہوئی اور آپ ایسے ہی گھرانے میں آئی جہاں پر جو ہے آلریڈی نیکی کے کام ہو رہے تھے, تو مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے مطلب کس طرح سے آپ کا دل جو ہے وہ کنٹریبیوشن کی طرف آیا, کیونکہ ایک عورت کے ایک سوچ الگ ہوتی ہے کہ میرا گھر ہو, میں اپنا کام بس گھریلو اپنی زندگی گزاروں, یا میں کہیں جاب کر لوں وہاں سے میں کچھ ارن کر لوں. لیکن یہ کہ یہ جو نیکی کی طرف آنا ہوتا ہے, ہیومینٹی کی طرف آنا, یہ بہت بڑی ذمہ داری, مطلب ایک جاب سے زیادہ بڑی ذمہ داری ہو جاتی ہے. تو یہ آپ اس سوچ کے ساتھ مطلب آپ نے اپنے آپ کو آمادہ کیا ہے سوچ کی طرف, یا آپ خوشی خوشی کس طرح, مطلب وہ فیلنگ میں آپ کی جاننا چاہ رہی ہوں. دیکھو شروع میں تو کیونکہ میں نے اللہ کا شکر ہے اس طرح کی چیزیں زندگی میں نہیں دیکھی تھی, انصاف ہمارے میرے پورا ماحول میں انصاف بھی تھا, ہر طرح کی سہولیات بھی تھی, تو مجھے اندازہ نہیں تھا کہ زندگی میں یہ والے مسائل تھے. وہ کہ میں نے اپنے والد کو بہت کم عمری میں کھو دیا تھا, تو میں نے دنیا کا رنگ, رشتوں کے رنگ, پیسوں کے پیچھے بھاگنے والے لوگ, وہ سب تو میں نے دیکھے ہوئے تھے, وہ تو میرے ایکسپیرینس میں تھے. لیکن میں ذاتی طور پہ ایسی ہوں کہ میں چمک دمک ان چیزوں سے متاثر نہیں ہوتی, تو ان چیزوں سے مجھے بہت اثر نہیں پڑا تھا, بلکہ بڑے اچھے لیسنس مل گئے تھے. جب میں شادی کے بعد آئی اور میں نے ان سب چیزوں کو دیکھا, تو آپ مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چنتا ہے, شروع میں آپ اپنے آپ کو آمادہ کرتے ہیں, اس کے بعد ایک قدم اٹھانے کے بعد دوسرے قدم کے بعد آپ کو پتہ نہیں چلتا, پھر آپ کٹ پر دوڑتے ہیں اصلاح کی طرف. الحمدللہ. اور مجھے جس چیز نے اٹریکٹ کیا تھا نیکی کی طرف, وہ ایک تو میں نے جیسا کہ آپ کو ذکر کیا کہ جو لوگوں کے چہروں پہ مسکراہٹ آتی ہے اور اس سے آپ کے دل کو خوشی ملتی ہے, وہ. اور ایک اور چیز, جو لوگ بنا کسی رشتے کے, بنا کسی اس کے جب آپ ان کا کوئی کام کر دیتے ہیں, ان کی زندگی میں آسانی پیدا کرتے ہیں, جو دعائیں وہ آپ کو دیتی ہیں, وہ دعائیں آپ کی روح کو, آپ کے جسم کو بہت ہلکا پھلکا کر دیتی ہیں. لوگ انزائٹی میں جاتے ہیں, لوگ ڈپریشن میں جاتے ہیں, دوائیاں کھاتے ہیں, اتنے پیسے خرچ کرتے ہیں. میں سمجھتی ہوں زندگی کے ہر دکھ کی تھراپی ہی یہی ہے کہ آپ اگلے بندے کو خوشی دیں, اگلے بندے کی راہ میں آسانی پیدا کریں. اس کے بعد آپ کو کسی قسم کی دوائیوں کی ضرورت نہیں ہوگی, کیونکہ یہ آپ کی تھراپی ہوگی. ان دعاؤں کی جو طاقت تھی اور اس کا جو ایک آپ کے دل دماغ پر سرور چڑھتا ہے, وہ ساری چیزیں مجھے اس طرف لے کر آ گئی. پیسے ویسے سے محبت کبھی تھی نہیں, تو وہ تو ایشو مجھے رہا ہی نہیں, لیکن جو اٹریکشن تھی وہ کسی بھی غیر کے منہ سے, جس کے مجھے چہرے تو یاد ہی نہیں ہے, تعداد بھی یاد نہیں ہے, لیکن مجھے وہ سرور یاد ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ جب اس دنیا میں بھی اللہ نے اس چیز کے بہت نوازا, اور دوسری مجھے ایک تسلی ہے کہ جب اس دنیا سے جائیں گے تو جب ہمارا حساب کتاب ہوگا تو ہمارے اعمال ہمارے سامنے آئیں گے. تو جب اللہ تعالیٰ کے سامنے میرے گناہ آئیں گے, تو مجھے ایک پازیٹیوٹی میرے اندر ہے کہ ان گناہوں کے ساتھ کچھ نہ کچھ ٹوٹی یہ سب چیزیں, اور یہ بہت اچھی والی دعائیں آئیں گی. تو میں سمجھتی ہوں وہاں مجھے سرخرو ہونے کا اللہ موقع دے, وہاں میں سکون سے یہ کہہ سکوں جس کے ہم امتی ہیں, میں ان کے لیے یہ کہہ سکوں کہ ہم ان کے لیے شرمندگی کا باعث نہ بنے. میرا کوئی عمل ایسا ہو جائے جس میں میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ دیں کہ ہاں جو میں چھوڑ کے آیا تھا امتی, بہت 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 چھوٹی سی کوئی چیز ہو, کوئی اچھی چیز ان کے سامنے تھی, امتی ہونے کی حیثیت سے آ جائے. دل میں صرف اسی قسم کی خواہشات ہے, اور پھر پتہ نہیں زندگی میں اللہ کیا کروا رہے, کتنا اچھا کتنا بہتر, بس رب اس کو قبول کر لیں. اور اس چیز سے میں ایک بات ضرور کہہ دوں کہ ایک دفعہ چلنے کے لیے آپ کو اپنے آپ کو ڈالنا پڑتا ہے, کیونکہ شیطان آپ کو اتنی آسانی سے راہ راست پر آنے نہیں دیتا. بس ایک کوشش کریں, کیونکہ پھر اللہ کا وعدہ ہے, اللہ کہتا ہے اس کے بعد انسان جو بالکل اس کے بعد انسان جو ہے پھر اس راہ کی طرف, میرے خیال میں آپ کو تو وہ جو چمک دمک دنیا کی ہے اس سے کوئی اثر بھی نہیں ہوتا ہوگا. نہیں, چمک تو پتہ ہے آپ کو, ایسا وہ ایک شعر ہے نا, بازی جائے اطفال ہے دنیا میرے آگے, ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے. جب آپ ہر چیز کی ریالٹی کو قریب سے دیکھ لیتے ہیں, اس کے بعد ان چیزوں پہ آپ کا دل نہیں لگتا, اور یہ نہیں کہ آپ اس پہ پوسٹ کر رہے ہوتے, بس آپ ان کی حقیقت سمجھ لیتے ہیں. اور وہ اتنی, وہ آپ کو بازی جائے اطفال یعنی بچوں کے کھیلنے کی جگہ لگنے لگتی ہے. یعنی جو لوگ ان چیزوں کو جمع کر رہے ہوتے ہیں, میں شیلٹر ہوم دیکھتی ہوں, میں لوگوں کی زندگیاں دیکھتی ہوں, میں نے دیکھا ہے کہ پیسے نے کیسے بڑھاپا تباہ کیا, میں نے دیکھا ہے کہ کیسے پیسے کے
की वजह से औलाद माँ बाप से बुढ़ापे में झगड़ा करती है, उन्हें घर से निकाल देती है। बहुत कहानियां होती है वहाँ पर, बहुत। शेल्टर होम्स में दो तरह लोग पहुँचते हैं, एक वो बुजुर्ग जिनके पास पैसा नहीं होता और एक वो बुजुर्ग जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है, जिसको उन्हीं के अजीज और कारिब छीन लेते हैं और शेल्टर होम तक पहुँचाते हैं। अच्छा आलिया जी, जी एक बात बताइएगा, जब आप अपने इदारे में जाती हैं, वहाँ पर ख़वातीन होती हैं, बहुत अच्छा आपने साफ सुथरा इतना अच्छा रखा है कि वहाँ पर जाकर जो है अच्छा लग रहा होता है, तो आप ये बताएं कि वो वाली फीलिंग है आपकी कि वहाँ पर जो ख़वातीन हैं, आपको पता है कि बड़ी मजबूर और मुश्किल हालात में वो ख़वातीन जो हैं वो होती हैं, और फिर आपके इदारे में आकर आप उनकी मदद भी करती हैं, उनको वापस भेजने में भी मदद करती हैं, जो नहीं जा पाती हैं वो वहाँ पर ही रहती हैं, लेकिन ये है कि वहाँ जाकर जो एक फ़ील है उसके हवाले से आप बताएं, जो ख़वातीन से मिलने की फ़ील होती है, जो वहाँ पर मौजूद होती हैं, उनके दुख दर्द बांटने की फ़ील है। कई ख़वातीन आपके साथ रोती भी होंगी ज़रूर परेशानी में कि उनके साथ क्या क्या हो गया, तो ज़रा वो फ़ील बताएं मुझे। पहले तो मैं उससे एक जुमला ये कहता हूँ कि लोग कहते हैं गुर्बत के मारे ये, देखिए मैं हमेशा इस बात कहती हूँ कि गुर्बत के नाम पर जिंदगी नहीं छीनी जा सकती। अगर मैं अपने इदारे के हवाले से बात करूँ, आपने बहुत मोहब्बत से जिक्र किया, मेरे इदारे में लग्जरियस बिल्कुल भी नहीं है। मेरे इदारे में जिस तरह से हम चीजों को शेयर कर रहे होते हैं, एक एक दुपहर को कई लोगों के साथ शेयर कर रहे होते हैं, वरना जमीन पे होता है, तो वहाँ आसाइशें नहीं है। अब जहाँ आसाइशें नहीं है वहाँ लोग सुकून से क्यों रह रहे हैं? वहाँ लोग सुकून से सिर्फ इसलिए रह रहे हैं कि मेरे पास जो मोहब्बत है वो मैं बांटती हूँ और मैं उसमें किसी की मोहताज नहीं हूँ, मुझे किसी से मांगनी नहीं पड़ती, वो मेरी जाती मिल्कियत है मेरी मोहब्बत, वो मैं उन सब औरतों में बांटती हूँ और बदले में उनसे मैं मोहब्बत लेती हूँ। मोहब्बत का लेन देन जो होता है वो हर वो इंसान बगैर बताए समझ जाएगा कि जब मोहब्बत के होते हैं बगैर किसी और गर्ज से, तो आप अंदर से कैसे मजबूत होते हैं। क्या उसके बाद आपको किसी और चीज की जरूरत पड़ती है? क्या अगर आपको मोहब्बत देने वाले हाथ हो तो उसके बाद आपको जिंदगी का कोई दुख याद रह जाता है? मोहब्बत सबसे स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, सबसे स्ट्रॉन्ग दवा है, और ये वो इलाज है जो इस गरीब मुल्क में भी हमें बाहर से पैसे नहीं लेने पड़ते, ये हमारे अंदर मौजूद है। तो मैं फीलिंग के साथ अंदर जाती हूँ और वहां से जो चीजें मुझे मिलती हैं, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह तूने मुझे मोहब्बत में कुछ तब्दील बनाया है। ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि हमें कभी कभी लोगों के लिए रास्ता बनाने के लिए अगर ज़कात खैरात इस तरह की चीजों की तरफ जाना पड़ता है तो दिल में एक चीज आती है ना कि इस चीज के लिए बात करना भी आसान नहीं है, मांगना तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन क्या रब की करम नवाजी है कि उस क्षेत्र में मेरे इदारे में वो गुर्बत के बावजूद अल्लाह ने इज्जतें कायम रखी हुई है, कच्ची छतों के नीचे पक्की इज्जतें हैं। तो वही माएँ वही औरतें जिन्हें घर में इज्जत नहीं मिली है, इज्जतें पामाल हुई है और यहाँ पर आती है तो इज्जत मिलके क्या खुशी होती है ये भी इंसान समझ सकता है। और मोहब्बत दो और मोहब्बत लो। वाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी बात कही है। थैंक यू सो मच आलिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत कुछ आपसे सीखने को मिलता है, जब भी आपसे बात करती हूँ ऐसे लगता है कि एक नई बात आपसे सीखी है। आपने बहुत अच्छा अदारा चला रही हैं, बड़े वहाँ पे ख़वातीन जो हैं वो बड़े, मैंने देखा है कि सुघड़ भी हैं, बड़ा ख्याल भी रखती हैं, सफाई सुथराई भी है, अपनी सफाई सुथराई का भी ख्याल रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, नेकी के काम का बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही भी ब्रेक की जानिब जाएंगे, वापस आएंगे और हम मज़ीद बात करेंगे इंसान, ह्यूमैनिटी, इसके ऊपर। हमारे साथ ही रहें। सल्ली अला मुहम्मद, दिलो निगाह की दुनिया नई हुई है, दिलो
कि मेरे लिए मेरे आका ने बात की हुई है, दुरूद पढ़ते ये कैसे रोशनी हुई है। अनम बहुत आपने अच्छे नात पढ़ी, सुभान अल्लाह, जज़ाक अल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप जो है एक तो आप बचपन से आपने कहा कि आप जो है पढ़ते चले आ रहे हो, आगे आपका क्या प्लान है फिर? आगे अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से जो एक चीज़ मिली हुई है नात ख़वानी की फील्ड, तो इसी चीज़ को आगे ले माइक पे बोलें। क्योंकि वालिद साहब भी इस फील्ड में थे, फिर बहनें भी इस फील्ड में थे, भाई भी इस फील्ड में थे। अच्छा माशाल्लाह से। तो अभी इंटरनेशनली जाने का भी कोई प्लान है बाहर के? इंशाल्लाह मौका मिलेगा तो इंशाल्लाह। फैमिली में कोई बाहर जा चुका है? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे वालिद साहब जाते थे और फिर मेरे वालिद साहब ही जाते थे, फिर उसके अच्छा। बाद मेरी बहन है, मेरे भाई हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह उनको सुन के फिर मुझे भी शौक चढ़ा कि फिर मैं भी इस चीज़ को कंटिन्यू करूँ। माशाल्लाह, माशाल्लाह। अब वालिद साहब नहीं, उनका इंतकाल हो चुका है, तो अब ये है कि बस अब घर वालों को ये मुझसे एक्सपेक्ट है कि इस चीज़ को अब मैं आगे कंटिन्यू रखूँ। भाई ये है ना कि जब एक चीज़ को लोग सुन रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, तो फिर उस चीज़ को कंटिन्यू क्यों ना रखा जाए। बिल्कुल, और इतनी अच्छी आपकी आवाज़, आपकी फैमिली में पढ़ा जा रहा है, बहुत अच्छे। और आज हम जिस तरह बात कर रहे हैं नाज़रीन नेकी के हवाले से, और वो लोग जो वाकई नेकी का काम कर रहे हैं उनसे भी हम बात कर रहे हैं, उनकी फीलिंग्स भी जान रहे हैं। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है बिनते फातिमा फाउंडेशन से फरजाना जी, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम फरजाना जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो आप हमारे साथ इस वक्त कॉल पर मौजूद हैं और हम आपसे भी बात करेंगे। मैं फरजाना के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि इन्होंने जब शुरुआत की थी, ख़वातीन जो वो ओल्ड जो बुज़ुर्ग ख़वातीन जो बेसहारा होती हैं, जिनका कोई सहारा नहीं, और इन्होंने बिनते फातिमा फाउंडेशन के हवाले से फरजाना जी ने उनको सहारा देना शुरू किया। पहले एक खातून आई, फिर 2 आई, और अब जो है सोचे कितनी मजबूर ख़वातीन होती हैं, उनका कोई ठिकाना नहीं होता, लेकिन फरजाना जी ने उनको बहुत अच्छी रिहाइश भी दी है, साथ में खाना भी बहुत अच्छा होता है, सफाई सुथराई का भी बहुत ख्याल होता है। फरजाना जी, ये जो नेकी का काम है, मैंने तो अपनी आंखों से देखा है जिस तरह आपने शुरू किया, और अब आप जो है इस नेकी के काम को इतना बढ़ा दिया है कि हमें ऐसा लग रहा होता है कि अब आप इसे माशाल्लाह तो लेकिन हैंडल कैसे करेंगे, लेकिन आपने बहुत अच्छा हैंडल भी किया, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सवाल जो मैं आपसे करूंगी, सबसे पहले तो ये कि ये जो इंसान नेकी का काम कर रहा होता है, जब ह्यूमैनिटी के लिए काम करता है, इंसानियत के लिए काम करता है, तो वो फीलिंग वो किस तरह से आपके अंदर आई, पहले तो ये बताएं, और किस तरह से आगाज हुआ था? बस आवाज का तो फातिमा नामी खातून थी जो कि मेरे नेबर में रहती थी, लवारिस थी, तो उसको मैंने अपने पास रखा, क्योंकि मैं अपने अल्लाह से दुआ करती थी कि या अल्लाह पाक मुझे चारदीवारी में कोई ऐसा काम दे जो मैं तुझे राजी कर सकूं। तो बस ये दुआ मांगते मांगते अल्लाह पाक ने मुझे फातिमा की सूरत में खातून दी, उसको मैंने अपने पास रखा, उसकी सर्जरी वगैरह टांग फ्रैक्चर थी, तो फिर उसको देख के तो औरतें और आई बिल्डिंग थे कि आपने फातिमा को रखा हुआ, आप बड़ा घर ले और हमें भी रख दें। तो बस वो अल्लाह ने उनके मुंह से निकलवाना था, और फिर मैंने इसकी कोशिश की कि यही वो काम है जो कि चारदीवारी में अल्लाह को राजी करने का है। तो बस ये सिलसिला फिर ऐसा चला कि माशाल्लाह इसको अब 17 साल हो गए, और अल्लाह ने मुझे काबिल किया, अल्लाह ने मुझे समझा, मेरी फैमिली को समझा कि कुछ काम हमसे ले ले। तो शुक्र अल्लाह का कि अल्लाह पाक ने ये सारा। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। एक और चीज़ भी कि आपके माशाल्लाह से फैमिली मेंबर्स भी जो हैं इस कार खैर में जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और उनके दिल में जो है वो मैंने यही बात अभी जो है आलिया बनी साहिबा से भी की थी कि किस तरह से जो है इंसान के जहन में आता है, क्योंकि ये जो एक दुनिया है यहाँ पे बड़ी चमक दमक भी होती है, और इंसान जो है, क्योंकि बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ये जो आप लोगों ने संभाली है, ये बड़ी जिम्मेदारी होती है। बच्चों ने भी इसमें जो है पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया। असल में मेरी ये ख्वाहिश थी कि इनको ना
इस एज में फैमिली मिलनी चाहिए, ताकि इनके आगे पीछे जिस पोते पोतियां ये वो होंगे तो इसका टाइम पास होगा और आधी बीमारी इनकी खत्म हो जाएगी, जो बीमारी बुढ़ापे की होती है। तो बस मैंने अपने बेटों से कहा, और मैंने कहना था, कोशिश होती है, करता तो अल्लाह ही है ना। तो बस मेरे अल्लाह ने ये सारा साथ मेरे साथ बनाया, और इस नेकी के हिस्से में मेरी बहू, मेरे बेटे, मेरे पोते पोतियां, और अब मेरी लाहौर में बेटी है, उसने भी ये सिलसिला शुरू, और अल्लाह ने उसके काम ये दे दिया। तो बस ये, क्योंकि कहते हैं कि बुढ़ापे में ना इंसान बच्चा हो जाता है, लेकिन मैं ये कहती हूँ ये बच्चे नहीं होते, बच्चे तो सब टॉय से पहले जाते हैं। इनको जीते जानते लोग और अपने इनके आमने सामने घूमने चाहिए, तब तक इनको खुशी होती है। बिल्कुल, एक तो बहुत अच्छी बात की आपने। अपने छोड़ देते हैं, अपनी तरह दीवारें छूट जाती है इनसे। तो बस मेरा ये था कि ये आखिरी टाइम पे मौत ना मांगे कि या अल्लाह मौत दे, या अल्लाह मौत दे। तो ये नहीं होना चाहिए, बिल्कुल। कुछ थोड़ा कामयाब हो गए हम लोग, बहुत ज़्यादा। बल्कि हमने देखा कि वहाँ पर जब आते हैं तो ख़वातीन आपस में, जो बुज़ुर्ग ख़वातीन है, वो आपस में, उनको एक फैमिली भी मिली हुई है, आपस में बातचीत भी हो रही होती है। तो ये जो चीज़ थी, हमें यहाँ पर बड़ी कमी महसूस होती थी कि वो ख़वातीन जो जिनका कोई जो है सर पर नहीं मौजूद होता, अब वो क्या करें, कहाँ जाएं। और आपकी ये बात कि अपने लिए कोई मौत नहीं मांगे, बल्कि उनके, क्योंकि जिंदगी अल्लाह की दी हुई ये खूबसूरत, ये अल्लाह का दिया तोहफा है, बल्कि इसे और खूबसूरती से गुजारे। आपने खूबसूरती दी उन खवातीन को। जी बहुत शुक्र अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह पाक में काम बांटे होते हैं हर बंदे के हिस्से के। तो बस ये है कि उसको मांगना चाहिए, जैसे कहते हैं कि अल्लाह तौफीक दे, तो तौफीक मांगने की आती है ना। तो बस मैंने बहुत ज्यादा मांगा अपने अल्लाह से, तो मेरे अल्लाह ने मुझे पसंद किया या मुझे चुना इस काम के लिए। तो शुक्र अल्लाह का। मैं ये कहती हूँ कि ये नेकियां, ऐसी नेकियां, मैं दुनिया से जाऊँ ना, तो अगर ये लोग मुझे याद करके एक आंसू भी बहाएं तो मेरी कब्र को वो आंसू ठंडा करेंगे। बस मेरी दिन रात यही कोशिश है। देखो, हर कोई अपने लिए करता है, मैंने भी अपने लिए किया, और मेरी ये गुजारिश है इनके अपनों के लिए कि खुदा के वास्ते ये नेकियां घर से नहीं निकालो, इनको आपकी अशद जरूरत है। ये ढूंढती है, दरवाजों की तरफ देखती है कि इनकी दुआएं, इनकी बातें, इनकी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट। बहुत बहुत शुक्रिया फरजाना जी, इंशाल्लाह आपके साथ दोबारा एक दफ़ा शो ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह। डॉक्टर सादी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपसे इजाज़त देंगे नाज़रीन से, और जाते जाते हम अनंत से कहेंगे कि आप जो है हमें नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर सुनाएं। मेरी तो सारी बहार आपसे है, हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है। मैं